Rahul Gandhi, while inaugurating the Congress headquarters, he said that the Congress and the opposition are fighting with BJP, RSS, and the Indian state. You can have differences with the Bharatiya Janata Party, but to say that you are wanting to take up cudgels against the Indian state, this shows that he has no understanding of even what's good for him. He has no understanding of Indian politics. He doesn't either have a mind of his own, or he is very much under the influence of people I call the Soros toolkit gang. The little I know about the RSS and the more I learn, my admiration for the RSS increases. He said in 2015, again in 2020, मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा और नहीं साफ करने पाया तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा। बच्चों की कसम खाई, मैं राजनीति नहीं करूँगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊँगा। और फिर किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की, वो पता लगा तो सरकार, दिल्ली की सरकार ने इनकी गाड़ियों पे 1,45,00,000 रुपया खर्चा। तो दिस मैन हैज नो क्रेडिबिलिटी। बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है कि लोग दुखी हैं, सांस नहीं ले पा रहे। दुनिया भर में भी इनके रैंकिंग के लिए कम्पीट कर सकते हैं, बट इंडिया में तो सबसे करप्ट पॉलिटिकल आउटलेट है। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। 3 क्लस्टर के बाद 1 नलका है, शौचालय नहीं बनाए इन्होंने। तो भारत जैसे देश के लिए ये एक अजीब सी बात नहीं है कि राजधानी का चुनाव जो है मूलभूत समस्याओं पे हो रही है। क्या करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है कि करप्शन बाय इटसेल्फ इज नेवर अ मुद्दा, पर लोकल मुद्दों पे इन्होंने एक बार तो बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब पकड़े गए। क्योंकि अब लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है, इनकी करप्शन एक तरफ, इनकी नॉन परफॉर्मेंस, नॉन डिलीवरी एक तरफ, और हम पॉजिटिव, हमने देश में क्या किया और दिल्ली में क्या करने वाले वो दूसरी तरफ। नाउ व्हेन यू हैव दैट लार्ज पॉपुलेशन एंड यू हैव पीपल कमिंग एंड they will settle down wherever they can looking for work. The government of India, the Modi ji's policy is very clear. We want to settle these people in. In 2019, when Modi ji realized that they are making excuses, and Mr. Kejriwal's party turned around and said, "Abhi hame 2 साल और चाहिए, 2.5 साल और चाहिए, क्योंकि assessment करवानी है." That's when the Prime Minister took a decision कि इनके बस की नहीं और करना नहीं चाहते हैं। What's going wrong in assembly polls? Is this the leadership crisis? कौन बनेगा? हमारे यहाँ कोई टैलेंट की शॉर्टेज है ही नहीं, बट सेंट्रल लीडरशिप इस पे निर्णय तब करेगी जब अब स्थिति देख के क्या होगा। और केजरीवाल जी को ये कहा, तुम अपना तो तय करो कि तुम होगे या वो इंटरिम या चीफ मिनिस्टर आतिशी होगी। अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो भाजपा सरकार ने और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। समाज में एक तबका है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो समय समय पे सिख और हिंदू समाज के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट करने का प्रयास करता रहा। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार। BJP has been out of power in Delhi for over 2 decades, and this assembly poll, BJP is seeing this as a golden opportunity to come back to power because of anti-incumbency wave against the Aam Aadmi Party government and the former Chief Minister Arvind Kejriwal. To discuss the Delhi assembly polls and other issues related to it, we are joined by Hardeep Singh Puri, the Union Cabinet Minister and the Rajya Sabha MP. Namaskar, sir. Welcome to Organizer. Namaskar. Hardeep ji, let's start with the recent controversy by Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, while inaugurating the Congress headquarters, he said that the Congress and the opposition are fighting with BJP, RSS, and the Indian state. How do you see this controversial statement of Rahul? I'm frankly speaking, not surprised. I'm appalled that anyone with even a little bit of political education could have said this. First of all, you can have differences with the Bharatiya Janata Party, which is a political party, and you are in a different party, you can have differences. You can say you want to fight them. But to want to fight the RSS, it's a cultural organization. And let's put that aside. But to say that you are wanting to take up cudgels against the Indian state, this shows that either he has no understanding of Indian politics, he has no understanding of even what's good for him. Few months ago, when the last session of Parliament was going on, he used to wave copies of the Constitution, sometimes wrapped in cellophane. And we got hold of one of those copies. It was clear that he hadn't read it, because one of those cellophane wrapped copies actually had a preface which was deeply critical of the Congress party.
because of the emergency and other amendments that they have brought to the constitution. My view is that this young, so-called young leader who has been launched and relaunched so many times, he doesn't either have a mind of his own or he is very much under the influence of people, people I call the Soros toolkit gang. Now, I know, yes, George Soros toolkit gang. I'm not saying that they're all people aligned to George Soros, but are people who have that stream of thinking. One of his mentors said, you know, there's no such thing as an Indian. People in Northeast look like the Chinese. People in somewhere look like Afghans. I mean, these are crazy people. Now, Rahul Gandhi, if he were to say that he wants to take up a fight or he wants to fight the Indian state, then I'm sure that if you analyze the new laws, then he's almost at the level at which the Naxalites, the Communist Party of India, Marxist-Leninists wanted to take on the Indian state. And I think he could be tried for treason. If this is what he said and as if it's been reported and if this is what he means. But you know, you can't say, oh no, I didn't mean this. You want to have differences with the BJP by all means. I mean, BJP has a long history. It stands for a value system. And the BJP draws inspiration from the RSS, which is a cultural organization. And I've said on many occasions, the little I know about the RSS and the more I learn, my admiration for the RSS increases. Why? Because these are people who have given their life to prachar, to samaj seva. Whenever there is a natural calamity or there is some difficulty, the RSS comes out to help the people. Their only defining thing is it's country first, nation first. Now, to say that you want to fight them politically, I mean, what do you want to fight? You want to fight their Samaj Seva sentiment? You want to fight the fact that, you know, they put the country first? Clearly, you don't know what you're talking about. This is, I'm referring to Mr. Rahul Gandhi. He goes and signs agreements with the parties of communist states, doesn't make them public. He goes outside India, uses the first opportunity he gets to criticize the country. I think maybe he is giving vent to his political frustration that in the three elections, 2014, 19, 24, three elections put together, the Congress party didn't get 200 seats. But whatever it is, I think it's highly regrettable that he makes a statement, and I condemn it in the strongest terms. So we understand that he makes a statement against BJP because it's the opposition whom he's fighting with. But he has been continuously making a statement against RSS. We have seen this in the past also. He has no understanding of the RSS. He has no understanding of the RSS. By the way, he has no understanding of Indian history told altogether. When he attacks somebody like he attacked Veer Savarkar, I mean, I'm sure he didn't know that his grandmother had actually written a letter in appreciation of what somebody had done. And he should just get the basic facts right. I mean, the British viewed that gentleman, that person, so negatively that they didn't award him one life sentence, but several life sentences to run concurrently. So Rahul Gandhi, I don't know how to describe him. But I think that in many ways, by making these asinine statements, I'm choosing my words carefully, asinine statement, he's also helping to focus attention on the malaise in the mind of the Congress party. And because all the other people who were around him, when he made the statement, they would say, "Kya wah wah, kya kamal ki statement kar di." जब उनको समझ आनी शुरू हुई कि ये क्या, now they don't have a coherent explanation. अरे भाई, you can be against any political party, but the Indian state is your mother. I mean, it's your very existence. You can say that I want the Indian state to look like this. I want it to look differently. That's you can politically carry out a campaign. And some of the campaigns that they carried out, some of the constitutional amendments they brought, everybody may not agree, but we don't become against the state. For instance, the amendment used to insert the word secular, for instance. Whether you like it or not, that is the situation now. But you may or may not agree, but you don't go against the Indian state just because somebody has done something like that. Now, let's come to the Delhi election thing.
Sir, there is a data by Delhi Urban Shelter Improvement Board that Delhi is home to over 700 slums, cluster and jhuggi jhopri colonies, and around 30 lakh people lives there. And if we talk about in the population, 10 to 15% of the population lives there. And yeah, you also know that it combines a big vote share for any party. I just want to know from you that what are your way or the party way to reach out to these people living in the slums and JJ colonies. I've been Housing and Urban Affairs Minister for 7 years. So I know a little bit about the demography of Delhi. But what I'm going to tell you, I'll give you my personal appreciation, because I'm not the serving housing minister, or I'm not the party. That's why I asked I'm this a question. karyakarta. Yeah. You know, the population of Delhi in 1947 was about 8 lakhs. When the partition took place, we became an independent country. By 1952, when I was born, it had gone up from 8 lakhs to 22 lakhs. But because of the demographic shifts in population, people kept coming from rural areas to urban areas, from tier 2 and tier 3 towns to metropolitan towns. Whenever you take the next census of Delhi, the population of Delhi should be in the vicinity of 2 crores, or if not more. Now, when you have that large population and you have people coming in, they will settle down wherever they can looking for work. So all these informal settlements grew up. I don't call them slums because that's a pejorative term. But informal settlements, the government of India, the Modi ji's policy is very clear. We want to settle these people in. And not as Kejriwal says that we want to remove them. We want everyone who's living in an informal settlement to have a pakka awas with a kitchen, a toilet, like the kind that 3,200 we built in Kalkaji when I was housing minister, like the kind we just handed over in Jailerwala Bagh, I think 1800. And our view is that people living in these slums or informal settlements should all be given Pradhan Mantri Awas Yojana flats, jahan juggi wahi makan. And also those unauthorized colonies, 1700, the work on the providing the regularization or providing Malikana Haq to those people, that should also be expedited. It's precisely because the Delhi government, earlier the Congress, then the Aam Aadmi Party government, did not do anything about it. Although it's a state subject, land is a state subject. In 2019, when Modi ji realized that they are making excuses, and Mr. Kejriwal's party turned around and said, "Abhi hame 2 saal aur chahiye, 2.5 saal aur chahiye, kyunki assessment karwani hai." That's when the Prime Minister took a decision that inke bas ki nahi aur karna nahi chahte hain. Isliye central government, Kendra Sarkar, will bring a bill. I remember very clearly, it was November 2019. My younger daughter was getting married. I had to miss part of the marriage ceremony because I had to go and pilot the bill in Parliament. But karte, we got the bill passed, we started the registration, the authorization, but then came COVID for 2 years. So that work has to be expedited. Every stage in this and other things affecting Delhi, Mr. Kejriwal acts as a stumbling block. He doesn't help. When we were wanting to do the RRTS, I told him, Kejriwal ji, if you're not interested in the RRTS, aap chhod dijiye, hum akele kar lenge. But then Supreme Court intervened. Supreme Court told him, ki, you will give us the budget of the last 3 years. Advertising budget. When he had to give the advertising budget, he felt ashamed. That's when he gave the contribution to the RRTS. So, sir, we have seen that the BJP have been doing excellent work and with the motto of जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ पक्का मकान. And PM योजना के तहत हमने देखा है कि करोड़ों लोगों को उसका घर भी मिला है. 4 करोड़. हाँ, 4 करोड़ लोगों को घर मिला है. और 3 करोड़ के और बना के दे रहे हैं. हाँ. So after few days, when PM given the keys to the people of Delhi Vasis, Swabhiman apartment in Delhi, Ashok Vihar, few days after in Sakur Basti, Kejriwal did a press conference and he said that, I will read his quote, that BJP will demolish all slums in Delhi if it is voted to power in the upcoming assembly election. BJP is prioritizing land acquisition over the welfare of slumdwellers. He's a liar. He's a liar. Simple. He said in 2015, again in 2020, मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा और नहीं साफ करने पाया तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा. He is a man who started his political career under the
भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन स्टार्टेड बाय अन्ना हजारे जी। बच्चों की कसम खाई, मैं राजनीति नहीं करूँगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊँगा, मैं आम आदमी हूँ, मैं मफलर पहनूंगा, वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठूंगा, लाल बत्ती नहीं करूँगा, मैं सरकार से। वो फिर किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की, वो पता लगा तो सरकार, दिल्ली की सरकार ने इनकी गाड़ियों पे 1,45,00,000 रुपया खर्चा। इनका नहीं, वो सिसोदिया जी है, उनके पे भी 50 लाख खर्चा। तो ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 2012 में स्टेटमेंट करते हैं कि अगर सीएजी नहीं होता तो दिल्ली में जो कांग्रेस सरकार है वो देश को बेच देती। और अब उनसे पूछा जाएगा 14 जो आपके खिलाफ सीआईडी रिपोर्ट्स हैं उनको क्यों नहीं आपने स्पीकर साहब को सबमिट किया, असेंबली में क्यों नहीं आपने टेबल किया, आपने क्यों नहीं एलजी को भेजा? तो दिस मैन हैज नो क्रेडिबिलिटी। सो देयर आर 3 थिंग्स हैपनिंग ईशान जी। वन, बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है कि लोग दुखी हैं, सांस नहीं ले पा रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वेरी पुअर जब होता है तो लोग खुश होते हैं, क्योंकि ये इट गोज फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग टू वेरी पुअर इज कंसिडर्ड गुड। और ये जो जमुना जी का पोल्यूशन लेवल है, अब चर्चा सिर्फ यही है कि 500 गुना ज्यादा पोल्यूटेड है या 2000 गुना ज्यादा पोल्यूटेड है। ये है स्थिति दिल्ली की, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई है, और क्रेडिबिलिटी लो होने का कारण है कि आउटफिट विच स्टार्टेड as a political startup against corruption has become the most corrupt political outfit in the country. दुनिया भर में भी इनके रैंकिंग के लिए compete कर सकते हैं, बट इंडिया में तो सबसे करप्ट पॉलिटिकल आउटफिट है। Sir, you have mentioned about Yamuna and corrupts as well as corruption. I will come to corruption later. First, I want to know, does BJP has any plans to 100%। BJP, कोई आप BJP को चैलेंज दे रही है, they'll get the best expertise in the world, और कोई ऐसा चैलेंज नहीं हो सकता। अब लोग कहते थे नहीं वो गरीब लोग हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, उनका क्या? अरे वो गरीब लोग नहीं है, आपकी नीतियां नहीं थी तभी वो गरीब, आपकी नीतियां खराब थी तभी वो गरीब हुए। अगर 2014 से पहले जितना मोदी जी का अर्बन स्पेस में अटेंशन है, अगर उसके पहली तो 2004 और 14 के बीच में सरकार थी, अगर उन्होंने इतना इसमें गौर किया होता तो हम इस स्थिति में पहुंचते ही नहीं। सर, आप बार बार करप्शन को, शीश महल को मुद्दा बना रहे हैं, और अगर हम लोग भाजपा का कैंपेन देखें तो इसी अराउंड घूम रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। लेकिन सर, एक बात ये है कि हमने अभी झारखंड चुनाव में देखा कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था हेमंत सरकार के खिलाफ, वहां पे लेकिन हेमंत सरकार की वापसी होती है। तो क्या करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है कि करप्शन बाय इटसेल्फ इज नेवर अ मुद्दा। करप्शन, दैट इज व्हाट आई वांट टू, आई कैन टेल यू, करप्शन नहीं बोला। द रियल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ करप्शन इज कि हमने जो विकास का काम किया उस पे इनकी करप्शन को हम दिखाएंगे। जैसे अगर हमने 4 करोड़ आवास बनाए, हमने कहा कि हम 3 करोड़ आवास और बनाएंगे, आपने ये आयुष्मान भारत वाली योजना दिल्ली में लागू नहीं की, हम कहेंगे हम आपका ये जो मोहल्ला क्लिनिक वाला नाटक है इसकी जगह हम अच्छी सा आपको हर एक को बढ़िया सी मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज देंगे। अगर हम आपको पानी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, 3 क्लस्टर के बाद 1 नलका है, शौचालय नहीं बनाए इन्होंने, तो केंद्र सरकार जो कर सकती है वो करेगी। पर अगर केंद्र में और राज्य में और यूटी में दोनों में भाजपा की सरकार हो जाए तो डबल नहीं और ट्रिपल इंजन बन जाता है। सर, ये मेरा एक कह सकते हैं व्यक्तिगत भी आप कह सकते हैं सोच है कि दिल्ली देश का राज्य है, और दिल्ली का चुनाव बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पे होता है जो कि मूलभूत है। तो भारत जैसे देश के लिए ये एक अजीब सी बात नहीं है कि राजधानी का चुनाव जो है मूलभूत समस्याओं पे हो रही है? कुछ और भी हो सकता था क्योंकि ये देश की राजधानी है। देखिए, इस मुद्दे को ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। 2014 में, 2019 में, 2024 में दिल्ली में 7 लोकसभा सीट से 7 जीतते आए हैं, तीनों बार। एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है कि जो लोकल चुनाव होता है कॉरपोरेशन का या असेंबली का, उसमें लोकल मुद्दे हैं, पर लोकल मुद्दों पे इन्होंने एक बार तो बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब पकड़े गए हैं क्योंकि अब लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है। देखिए,
आप दिल्ली के लिए क्या कर सकते हैं, हर एक पार्टी आके करेगी, हम सब ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो तो लेजिटिमेट है कि किसी भी शहर के सिटीजन्स को। पर हमारे में कहने में और उनके कहने में बड़ा फर्क ये है कि हम तो क्योंकि सत्ता में है, मोदी जी की सरकार है 2014 से, हमने जो भी आज तक कहा है अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, 2014 के चुनाव से लेकर हमने कर दिखाया है। अगर हमने कहा था हम प्रधानमंत्री आवास योजना के देंगे, 4 करोड़ दिलवा दिए, 3 करोड़ और दिलवाएंगे। अगर हमने उज्ज्वला योजना में, अच्छा 2014 में टोटल गैस कनेक्शन देश में 14 करोड़ थे, अभी 33 करोड़ हो गए। उज्ज्वला योजना 2016 में प्रारंभ हुई, अब उसमें 10 करोड़ 33 लाख हो गए। आप महामारी के दौरान मोदी जी ने 224 करोड़ वैक्सीन की डोज बनवाई, मुफ्त बांटी, और देश में 80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा ये तो हमारी डेमोन्स्ट्रेटेड है। अब वो दिल्ली के लोगों को हम ये कहने वाले हैं, हमारा घोषणा पत्र, हमारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र आने दीजिए, ये सारे इश्यूज को हम क्लैरिफाई करेंगे, हम दिल्ली के लिए क्या करेंगे। और मान लीजिए उसके बाद इलेक्शन, इनकी करप्शन एक तरफ, इनकी नॉन परफॉर्मेंस, नॉन डिलीवरी एक तरफ, और हम पॉजिटिव, हमने देश में क्या किया और दिल्ली में क्या करने वाले वो दूसरी तरफ। Sir, you said that we won 7 seats, 7 Lok Sabha seats in Delhi. We have won, yes, thrice. What's going wrong in assembly polls? नहीं, वो डायनेमिक दूसरी होती है, वो डायनेमिक दूसरी होती है, वो Or is this the leadership crisis? नहीं, इट्स नॉट अ लीडरशिप क्राइसिस, नॉट अ लीडरशिप क्राइसिस। देखिए बात सुनिए, राजस्थान भी वन, मध्य प्रदेश भी वन। आपका लीडरशिप क्राइसिस का मतलब है कि हम एक चेहरा अनाउंस कर दें और उस चेहरे पे इलेक्शन लड़े ना। We are a party in power. It's Modi ji's development, that overall development narrative which is carrying. कौन बनेगा? हमारे यहाँ कोई टैलेंट की शॉर्टेज है ही नहीं। 2 तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे, कई बड़े पोटेंशियल वाले लीडर्स हैं, कई एमपीज हैं। ओके, मैं एक एमपी क्लियरली है, अदर्स आर देयर, a lot of people who can contest। तो हमारे 70 में से मैं कहता हूं कई दावेदार बन सकते हैं, बट सेंट्रल लीडरशिप इस पे निर्णय तब करेगी जब अब स्थिति देख के क्या होगा। पर आप हमारे साथ चर्चा करिए ये आज से 1 हफ्ता बाद, और ये इश्यूज होंगे नहीं रेलेवेंट। सर, बट द प्रॉब्लम इज कि अपोजिशन कीप्स ऑन अटैकिंग यू। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे ने कहा कि भाजपा का दुल्हा कौन है? नहीं, भाजपा वो तो बनाते, एक हमारे फॉर्मर एमपी हैं, एमपी फॉर्मर और भी है, पर वो कहते हैं वो ही बनेंगे। और केजरीवाल जी को ये कहो तुम अपना तो तय करो कि तुम होगे या वो इंटरिम या वो क्या टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर आतिशी होगी, आप अपना तय करो। बीजेपी का आप क्यों ठेका ले रहे हो कि बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? Sir, another important issue, we have seen this during the Jharkhand election also. And again, BJP is raising the issue of that Bangladeshis and Rohingyas and attacking Aam Aadmi Party government that they are providing voter ID card and Aadhaar card to them. We are not saying it. Their own MLA is on, क्या नाम है उसका, अमानतुल्लाह, he is on thing, हम 10,000 रुपए लेके हम आपको इन्फिल्ट्रेटर को सेटल करा देंगे, साथ में 5,000 रुपया लेके आधार बनवा देंगे, फिर आधार बनवाने के बाद आपको आवास भी दिलवा देंगे। ये तो खुद इनके लोग करें। एक और भी, 2 और भी इनके विधायक, एक महेंद्र गोयल है कोई, वो भी पकड़ा गया। तो ये तो ऐसे काम करते हैं और पकड़े जाते हैं। वो accept that there are proofs, but in retaliation he is saying that you and Amit Shah ji is... अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। उसी दिन हमने क्लैरिफाई कर दिया, इनको माइग्रेंट और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर में अंतर ही नहीं पता। किसी को घर नहीं दिया गया, उसी दिन कर दिया गया। हमारी ऑब्लिगेशन होगी जो लोग जो लेजिटिमेट हों, ये तो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर गिविंग एनीथिंग टू इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। हमारा तो ये चाहिए इनको आइडेंटिफाई करके वापस भेजना है, वो इसका काम था, इसने किया नहीं। 8-10 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई भी किया तो भेजेंगे। अभी तो लंबा प्रोसेस रहेगा, लंबा प्रोसेस रहेगा। ये जो सर कैग की रिपोर्ट जो आई है कि एक्सचेकर को जो 2,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, उसको 14 रिपोर्ट्स हैं भैया, उसको देख लो, पहले उस पर चर्चा होगी असेंबली में, वो एलजी साहब के बाद जाएगी, आप लोग वरिष्ठ पत्रकारों बंधुओं को मिलेगी, हम लोग पढ़ेंगे, उस समय तो बहुत कुछ निकलेगा। सर, आप सिख समुदाय से आते हैं, और अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो भाजपा सरकार ने और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन एक जो समस्या जो दिख रही है, कह सकते हैं, या एक परसेप्शन भी है
कि उसके बावजूद भी अगर हम लोग ग्लोबली भी देखें, अफगानिस्तान से लोगों को लाना हो या करतारपुर कॉरिडोर हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो सिख समाज देखिए जुड़ नहीं पा रहा है। नाराजगी देखिए उसमें नाराजगी के और दूसरी कारण तरफ हो कांग्रेस सकते ने हैं, इतना पर कुछ हमारे किया है, लेकिन हाँ। नहीं नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं। अगर हमारे में कोई कमियां रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उठ के ये कहते हैं कि रही हमें बताइए क्या करना है। तो देखो एक किसानों के मुद्दे हैं, हम हमेशा कहते हैं किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत उनका योगदान है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि वो दे डिफाई एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस पार्टी वही है जिन्होंने दरबार साहब पे हमला ऑथराइज किया, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, दिल्ली में कत्लेआम हुई, 3000 लोग मारे गए, ये कांग्रेस पार्टी है। आप उनकी अब उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। मोदी जी ने तो हर एक स्टेज पे गुरुद्वारे में लंगर, ब्लैकलिस्ट ठीक की, करतारपुर लहंगा बनवाया, वो दरबार साहब में बढ़िया कॉरिडोर बनाया। जो सिख कम्युनिटी ने कहा वो करके दिखाया, उससे ज्यादा भी किया। बट इनका क्या है, तो ये पॉलिटिक्स में चलता है। हम अपनी पोजीशन से नहीं मूव करेंगे। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो 10वें गुरु हैं, उन्होंने अपनी फैमिली ने उन्होंने सैक्रिफाइस दिया, उन्होंने और किया। तो सिख कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी में कोई फर्क नहीं है। ये जो एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस, ये तो 10वें गुरु के साथ आए। देश के इतिहास में कोई ऐसे पीरियड आते हैं जो नाराजगियां पता नहीं किस कारण हो, बट सिख समुदाय में बताता हूं, अब कुछ लोगों की जो मिसलेड लोग हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो उनके स्टेटमेंट, उनको सिख कम्युनिटी को मत जज करिए। इट्स अ हार्ड वर्किंग कम्युनिटी। हमारी जनसंख्या जो है देश की पॉपुलेशन में 2% से कम है, पर आप देखिए आगे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, आप गैलेंट्री अवार्ड्स में कितने परसेंटेज फौज में काम करते हैं। तो ये कम्युनिटी सेवा वाली कम्युनिटी है। कोई भी किसी धर्म का भी व्यक्ति हो, जो हमारे गुरुद्वारा साहब में जाके उसको लंगर मिलेगा, कीर्तन सुन सकता है। और मैं आपको एक बताऊं, ज्यादातर सिख लोग, मैं तो अपनी जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है उसमें 10वां हिस्सा जाके सोशल सर्विस में लगाते हैं। तो इसलिए जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ है, बहुत हद तक ये ठीक हो गई। अब कश्मीर के बारे में भी कहा जाता था, अब देखिए 370 हटाने के बाद अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे वो टनल की इनॉग्रेशन में। अब देखिए वहां पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, फ्लाइट्स बढ़ी जा रही हैं, टूरिज्म भरा हुआ है। तो ये जो रेजिडुअल थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है सिख कम्युनिटी, ये भी सही हो जाएगी। सर वन लास्ट क्वेश्चन, यू टॉक्ड अबाउट मिसक्रिएंट्स। तो समाज में एक तबका है, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो समय समय पे सिख और हिंदू समाज के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट करने का प्रयास करता रहा। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, और क्या आपके पास कुछ प्लान है इसको डील करने का? चलिए देखिए, ये प्लान जो है भी तो वो कैमरा पे नहीं डिस्कस होता है। ऐसा है, हमारा जो आउटरीच है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी के इश्यूज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम है, लोग डिफरेंसेस पैदा करते हैं, वो आके कहते हैं जब प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जैसे एमएसपी का इशू है, अरे भाई देखो तो एमएसपी कहां थी, कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां पहुंची। कुछ लोगों ने मिसयूज किया। मैं उसी कैबिनेट मीटिंग में था जब हरसिमरत जी ने इसका स्वागत किया, जब हमने अनाउंस किया कि ये कृषि कानून 3 आ रहे हैं, बाहर जाके गाली देनी शुरू कर दी। तो इसका कोई बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर हमारी तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उनके सरकार की तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा कि जो भी मिसगिविंग्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग, हम उनको दूर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद ऑर्गेनाइजर। थैंक यू सर।